I must welcome Hyderabadi, Ikra Amar, Rasheen, Seher Khurram. The idea is, what is chromosome made from? First thing, what is chromosome made from? Anybody? This is, मैं आपको command word भी लिखता रहता हूँ साथ साथ, ठीक? So this is, what is chromosome? Chromosome is made Thread from like structure. bases. प्लीज हैदर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अगर कंफर्म आंसर तो आप बताइए, थोड़ा सा सोच लें फिर, ठीक है? जरूरी नहीं होता कि मतलब हम हर चीज का आंसर करें, इवन इफ यू डोंट नो। सब बच्चों से मैं कहता हूँ, तो व्हाट इज क्रोमोसोम? यू हैव टू स्टेट। एनीबडी? Thread like structure. Sahar, is this you? Ji sir. Okay, so it is thread like structure. Anybody, if you want to add up more? Thread like structure made up of dash. चलें, जो हम करते हैं आप फिल कर लीजिए। Anyone? Now this is time to speak for everybody. Made up of dash. Strands. Gene. DNA, made up of DNA. Yes. Right? And which contains dash. G से Genes. genes. Yeah, which contains genetic information in the form of genes. Okay, the second one is what is gene. तो इसका जो है ना हमारे कोर्स में है डेफिनेशन। देखिए मैं साथ साथ कीवर्ड देता हूँ। अमीर है, अब बताएं, या मैं कंप्लीट करता हूँ, आप उसका, अगर आप कंफर्म नहीं है मैं इसको बनाता हूँ, फिर आप कंप्लीट करें। इट इज लेंथ ऑफ Okay, sir. जीन इज लेंथ ऑफ डैश। जी बेटा। Length of DNA. Very good. That codes for a dash. Anyone? Protein. Yes. Yes sir. Yeah, that codes for a protein. Third thing that we are doing is allele. आप समझ लो कि एक DNA, every part of DNA is not gene. Only that part of DNA is gene which codes for a protein. How does it code Okay. for protein? ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह once we reach there. तो बच्चों, one part of DNA codes Sir वो for, mRNA molecule ना? जी, yeah, yes, you're right, yes, mRNA. exactly. तो allele जो है ना, allele क्या होता है? Allele is a version of gene. Now what does it mean, a version of gene? ठीक है, या इसका एक और भी डेफिनेशन है। वेरी गुड, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। Alternative form of gene that codes for, this definition is very important, that codes for another dash of same dash. Phenotype. Another trait of same phenotype. Another phenotype of same trait. Yeah. Oh. Well, next we are looking at sex determination. That what makes someone male and what makes someone female. We all understand that this depends on sperm or eggs. Yes. But this depends on Sperm. chromosome. Welcome to Baisha. Chromosome content. Chromosome content of dash. Sperm or egg? Sperm. Yeah. If sperm with dash fuses the egg. Acrosome. No. If boy will be made. G sir. Hiroshima. Anybody? XY allele. Yes. Very good, sir. If sperm with dash fuses the Y, girl will be made. XX allele. Yeah. So how should I fill this? बच्चों, eggs have X chromosome, ना?
रुबाइशा भी हैं हमारे साथ, रोशीन भी हैं, अमीर इधर भी हैं आपके। एंड यू नो दिस इज डिटरमिन्ड, जो जेंडर है ना ह्यूमन में, एंड ह्यूमंस, sex is determined कि whether you're a male or female. It is determined at the time of dash. Fertilization. Fertility. MashaAllah, Sahar, Zabardast. Good day for you. So depends on chromosome number of sperm. If sperm with Y chromosome fuses the egg, boy will be made. If sperm with X fuses the egg, girl will be made because girl is X. And at the time of fertilization, ये डिसीजन होता है कि whether this will be male or female. और यहाँ होगा that controls another phenotype of same trait. We need to understand phenotype of trait थोड़ा सा. जैसे बच्चों height is trait या phenotype? Traits, sir. Trait. Very Yes, good. तो sir. इसके phenotype क्या है बेटा? Tall height or short height. Tall and short height. Yeah, very good. नहीं देखिए मेरे से बहुत शोर है this नीचे is वाला the प्लेटफॉर्म रुबाइशा, हाँ रुबाइशा आपकी तरफ से छोड़ रहा है, ठीक. Well, let's go next. Any questions so far? No, sir. No, sir. Wow. Need to go next sheet. Okay. तो बच्चों अब हम देख रहे हैं कि जो genes है ना, remember this is sequence of bases in gene that decides the sequence of dash in protein. Amino acids and protein. Yes. So you know proteins are made up of amino acids. So sequence of amino acids and protein depend on Sequence of bases Sequence of of base. genes. sequence of bases on dash, which then depends sequence of bases and gene. So you know this is very important. Okay, what is protein made from? That depends on what? Sequence of amino acids. No, bacho, no, that is sequence of amino acids. But the protein, hello? Yes, sir. So this proteins का जो order है amino acid का sequence वो किस पे depend करता है? mRNA पे है ना? mRNA. और mRNA किस पे depend करता है बेटा? Bases Sir, of sorry, genes. can you repeat? DNA पे, yeah. तो बच्चों different shapes of protein. Different shapes of protein are why are there are different shapes of proteins? Are because of a variety of dash they are made from. Amino acids. Very good. Well, this is we are going next. So it's one topic went down. जब आप पेपर करोगे ना तो आपको बड़ा हेल्प देगा ये. Well, अच्छा, DNA controls making of protein, yes or no? Yes. तो Yes. बच्चों वो कैसे करता है ये हम सबको पता है कि दिस इज हम इसको कहते हैं जीन एक्सप्रेशन. देखो ना ये छोटे छोटे मैंने आपसे कहा ना छोटे छोटे देयर आर अबाउट 24 टॉपिक्स एंड वी आर ऑन आई थिंक 24th, वी आर ऑन 4th. ठीक है, सम आर अ लिटिल लेंथी बट इजियर वन. तो जीन एक्सप्रेशन को हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं. दैट्स वेरी सिंपल थिंग. एंड यू ऑल नो इफ दिस इज सेल, here is nucleus with the pores, Yeah. and you know inside nucleus is something called DNA. और पता है जी बच्चों यूकैरियोट का पता है ना? यूकैरियोट Yes, sir. Yes, sir. membrane bound structure.
Yes. ये होता है कि ये डीएनए, ये दिस यहाँ से लेके फॉर एग्जांपल यहाँ तक, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड जीन. This wants to express itself. How does it express that? It makes dash against this mRNA. mRNA. mRNA comes out of nucleus. And bachcho, Yes. who will pick this up? Ribosomes. Wow, so this is ribosome. तो रोशीन से जरा पूछते हैं राइबोसोम क्या करेगा बेटा? Assemble the amino acid. Yes. So that's it. And mRNA क्या होता है? mRNA is a copy of dash. Gene. Gene. ये बच्चों जब हमने पहले किया था, we did even questions and everything. ठीक है? और आप the most body cells have same set of genes, yes or no? Yes. So why every gene doesn't show? Why protein maids are different? Because not every gene expresses itself at every part of body. Yeah. So some genes, Amir Haider में बता रहे हैं, some genes are switched off. If they ask you in papers, which they can ask you, really very important, कि why every cell has Sir, same. 2023 के पेपर में आया था एक क्वेश्चन. Yeah, every cell has same Sir? genes. Yeah, but why some cells make one? जी बेटा. सर अब गेस्ट पेपर बनाएंगे? और बेटा 5 साल पेपर कर लें बस, वही कैसे सारी फजूल चीजें ओके सर. स्टेट स्कूल वाले प्रैक्टिस. we have so many distinctions. I never, मैं आपको बताऊं, पैन पाकिस्तान हमारे एक फ्रेंड ने प्रॉब्ली वर्ल्ड में पोजीशन निकाली थी, फिर ये कंट्री टॉप है 2019 में अमाल खालिद, फिर रीजनल. मैंने कभी भी इस प्रैक्टिस में डाली हूँ. बेटा आगे हमारे जो टॉपिक है दैट इज अबाउट हैप्लॉइड न्यूक्लियस. व्हाट इज हैप्लॉइड न्यूक्लियस? एनीबॉडी? Sir, in which chromosomal number is halved? एक सेकंड है. हैप्लॉइड न्यूक्लियस यस. ये आज हमने क्लास में भी किया है. 23 number of chromosomes. नो, ये बहुत डिटेल में हमने पूरा डिक्टेट किया था, है ना. हैप्लॉइड न्यूक्लियस इज विच हैज, अच्छा आप तो नहीं थी, सहर आप नहीं थी, अकरा भी नहीं थी, रोशीन थी. विच हैज वन कंप्लीट, अच्छा नहीं, सॉरी प्रॉब्ली इट वाज नॉट फॉर दिस. एनीवे, वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. जैसे 46 के 2 सेट्स बनते हैं ना, 23 23. और बच्चों इसकी एग्जांपल क्या है? गैमेट्स. यस और नो? Yes. Sir, one complete set like pair. हाँ, प्लॉइड का लिटरली मीनिंग भी प्लॉइड सेट होता है ना. तो डिप्लॉइड मतलब डाइप्लॉइड. ठीक है, तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? विच हैज, हेलो, Two pairs of chromosomes. 2 कंप्लीट सेट्स. अमीर हैदर भाई, अमीर हैदर अब्बासी, इतना स्ट्रेस करके मैं आप बता रहा हूँ कि पेयर नहीं, सेट. सेट, प्लॉइड मीन सेट. बेटा तबीयत आपकी खराब है मेरा ख्याल आज भी ना. 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोम्स. प्लॉइड लिटरली मीन्स सेट. ठीक है ना. आप में से अगर कोई दोस्त मोबाइल यूज करें तो प्लीज मोबाइल साइड पे छोड़ दें, उससे जो है ना आपका टाइम, आपकी एनर्जी अटेंशन डाइवर्ट होगी. Sir, जी, ये सेट्स कैसे, मतलब सेट्स का मतलब क्या हुआ इसमें? ये जैसे 46 होते हैं ना, तो 23 कम फ्रॉम वन पेरेंट, 23 अनदर पेरेंट, तो वो जो 23 क्रोमोसोम्स मिलके एक सेट बनाते हैं. Like total 46? टोटल 46 होते हैं ना, तो वन सेट कम्स फ्रॉम वन पेरेंट, वन सेट कम्स फ्रॉम अनदर. तो फिर 46 पूरे स्पर्म में 23 होते हैं, एग में 23. प्लॉइड, मैंने आपको ना प्लॉइड बेटा, प्लॉइड लिटरली मींस सेट. व्हाट इज मेंट बाय प्लॉइड? A set. Set. सेट. तो डाइप्लॉइड मतलब 2 सेट्स, हैप्लॉइड मतलब 1 सेट. डन. Okay. Sorry. Okay. Done. और एग्जांपल क्या है बेटा हैप्लॉइड सेल की? Gametes. स्पर्म एंड एग. Yes, sir. और डिप्लॉइड की जाइगोट, नॉर्मल बॉडी सेल्स, है ना. एनी Yes. क्वेश्चन? Sir, Yes. please can you explain mRNA? जी बेटा, which one? mRNA. mRNA is a copy of gene. Okay. ये आप इसको लिखें ना, क्योंकि ये मैं आपको शेयर कर दूंगा. अगर आप लिख रही तो आपकी एनर्जी जो है ना अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी. मैं तो आई विल बी शेयरिंग विद यू, डोंट वरी. बच्चों माइटोसिस क्या होता है? इट्स अ Cell न्यूक्लियर division.
बेसिकली इट्स न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फिर सेल डिवाइड, साइटोप्लाज्म डिवाइड, ठीक है ना। Yes. लेकिन हम कहेंगे इट्स अ न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन Division. that results in production of New cells. मेरा एक सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ टू genetically identical cells। ये बेटा आपका स्टाइल मुझे जो है ना अभी अभी पेपर करीब आ रहे हैं, बड़ा वो कर रहा है, टेंशन दे रहा है। आप कैसे मतलब थोड़ा सा पर्टिकुलर काम करें ना चीज़ों पे, जो चीज़ मिस होती है थोड़ा मतलब फोकस सा। अच्छा, टू जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। अब देखो सेल डिवीजन नहीं है, ये न्यूक्लियर डिवीजन है, उसके रिजल्ट में ये दो सेल्स बनते हैं जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, एंड वी कॉल देम माइटोसिस। अच्छा, आगे जब हम मियोसिस करेंगे ना तो उसमें फिर हम इसको भी डिफाइन इट डिफरेंटली। अब आप मुझे बताइए कि माइटोसिस के रोल है, अब मैं लिखता हूँ, आप लोग मुझे फिल करें। व्हाट इज रोल ऑफ माइटोसिस? एक तो बहुत इजी है, जी से स्टार्ट, बोलो बच्चों, एनीबॉडी? सर क्या हुआ? रोल ऑफ माइटोसिस, अब ये बोलने का Grow. टाइम है, अब एनीबॉडी? There is a growth. ग्रोथ, यस, बिकॉज फॉर ग्रोथ आपको आइडेंटिकल सेल्स चाहिए ना नए। Yeah. बेटा जब हम ग्रो करते हैं तो हमें वी डोंट नीड टू हैव सेल्स विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, वो तो सिर्फ असल चाहिए जब गैमेट्स बना रहे हैं, स्पर्म्स और एग। यस और नो? Yes, sir. जी सर। तो बच्चों दूसरा जो है ना वो रिपेयर ऑफ डैश, मुझे बताएं सेल्स या टिश्यूज? टिश्यू। सेल्स। सेल को रिपेयर नहीं करते, सेल अगर खराब हो जाए तो वो रिप्लेस होता है, तो याद रखो बेटा, अच्छा। रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स। और सेक्सुअल And रिप्रोडक्शन, asexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Asexual. वेरी गुड। ए सेक्शन। या अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेयोसिस काम आती है ना, एंड दैट इज नीडेड Yes. इन मेकिंग डैश। Haploid cells. रिप्लेसमेंट ऑफ, सर पर जब वो डिवाइड हो रहा होता है सेल्स, जब आप उसमें तो माइटोसिस होते हैं ना। हाँ यस, जब आप पता है क्या, जब आप ये करते हो ना, फॉर एग्जांपल आप किसी चीज को टच करते हैं तो आपके हाथ से बहुत सारे सेल्स ना हट जाते हैं, रब ऑफ हो जाते हैं। जैसे वो कोई मर्डर वगैरह होता है ना तो गन गन के ऊपर देसी के इसके साथ जो सेल्स लगे होते हैं। इस तरह जब हम फूड खाते हैं तो हमारे सर इंटेस्टाइन, ऐसे तो हमारे हाथ खत्म हो जाना चाहिए। हाँ ना, हमारी स्किन बिल्कुल बोनलेस, हम बिल्कुल खाली हो सकते हैं स्किन से अगर माइटोसिस ना हो तो। जब हम खाना खाते हैं ना तो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर वाली लेयर सेल्स आर रिमूव्ड, रब्ड ऑफ सो मेनी, बट माइटोसिस रिप्लेसेस दो सेल्स। इस तरह कहीं स्किन पे हमें वूंड लग जाए, कट पड़ जाए, उसकी रिपेयर है, दैट इज माइटोसिस, राइट? अच्छा Yes. ओके सर या। तो बच्चों माइटोसिस को अगर हम डायग्राम से बताएं तो ये इट्स लाइक दिस। देखें बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं बनाऊंगा, आपने मुझे बताना है, इज दिस माइटोसिस या मियोसिस? For example, there's a case like 46, 46, 46, wait. Okay, keep telling me that will you believe this to be mitosis, meiosis, or none? Yes. Sir, this is सर इट्स mitosis. माइटोसिस। Yeah. Do you think cell division took place? नो। No, sir. Not yet. Oh, very good. So it may or may not take place. ठीक है, अब माइटोसिस होगी, सेल डिवीजन हो जाएगी। मियोसिस होगी तो सेल तब सेल डिवीजन होगी ना ना। ना ना ना, माइटोसिस, ये मतलब सेल डिवीजन, इट्स सेल डिवीजन आफ्टर माइटोसिस, सेल डिवीजन टुक प्लेस। अच्छा। अब मुझे बताओ कि इसमें हुआ क्या है, हाउ कैन 46 से 40 दोनों में 46 कैसे हो सकते हैं? ये तभी हो सकता सर पहले वो है, इंक्रीज होगा, पहले वो डबल होगा फिर या दोबारा डिवाइड होगा। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन।
और आपके कोर्स में ये लिखा है एग्जैक्ट रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स बिफोर डैश। Mitosis, Division. यस, एग्जैक्ट रेप्लिकेशन ऑफ division. डीएनए। मतलब अगर आपके पास 46 थे तो वो 92 हो So जाए। 92. वेरी गुड हेरा, सहर सहर जबरदस्त। Thanks. I could highlight this। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं राइट। कि रेप्लिकेशन अकर दिस विल बी टेस्टेड। किसी को कोई मसला तो नहीं हो रहा? तो No, sir. माइटोसिस का एक और भी इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे माइटोसिस इज वेयर क्रोमोसोम नंबर इज केप्ट। Same. वाओ। बच्चों माइटोसिस, अब मुझे बताओ ये माइटोसिस होएगा ये 23। हमारे साथ और कौन कौन है मेरा देखते हैं। 5 लोग, कौन छोड़ के गए? रोशीन, इकरा, सहर, हैदर, आई डोंट नो हु लेफ्ट। एनीवे, Rubasha. रुबाइशा। तो देखो ये 20, देखो कुछ लोग हमारे साथ जो है ना। हाँ रोशीन, हाउ आर यू बेटा? इकरा, इकरा हाउ आर यू? Yes, sir. इधर ही है, ठीक है। आई वाज सीइंग कि आप लोग अटेंटिव ही हैं अभी। तो मिस इकरा, आप मुझे बता सकते हैं दिस इज 23 क्रोमोसोम, ठीक है। अब मुझे इकरा बताएंगी कि ये कौन सी डिवीजन है, माइटोसिस है या मेयोसिस? Sir, mitosis. वाओ, वेरी गुड। Because Miss Ikra knows the chromosome number is kept same, no matter they were half or full. Any question? Sir, if haploid cells go through No, sir. mitosis, so will they carry on their half chromosome numbers? Yes, mitosis में chromosome number is kept same. Okay. ये मैं लिख भी देता हूँ। Mitosis is where chromosome number is kept same, I kept same. no matter which number is. Okay. Next thing is about stem cells. स्टेम सेल्स हमने पहले ही पढ़ा था बेटा, दिस इज डैश सेल्स, यू से। Unspecialized cells. वेरी गुड, Unspecialized. वेरी गुड। तो बच्चों अनस्पेशलाइज्ड सेल वो होता है जो मॉडिफाइड नहीं होता, लाइक रूट हेयर सेल, आरबीसी, स्पर्म सेल, ठीक है, द वन विच इज नॉट मॉडिफाइड, ठीक है। और Sir, दूसरी इसकी लेकिन ये सब बहुत modified इंपॉर्टेंट फीचर है कि इट कैन कंटिन्यू टू reproduce. डिवाइड। Oh, yes. इट कैन मतलब इट कैन डिवाइड मोर, राइट। Yes. इट कैन कंटिन्यू टू डिवाइड टू प्रोड्यूस cells which get specialized। अब बच्चों मुझे बताओ कि हमारी जो स्किन में ना, सॉरी इंटेस्टाइन में कुछ सेल्स तो स्पेशलाइज सेल्स हैं, लाइक द वंस व्हिच मेक गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक, यस और नो? Yes. हेलो, द रेस्ट Yes. अंडरस्टैंड? तो वो जो है ना वो इनिशियली वो नॉर्मल सेल्स बनते हैं, फिर वो स्पेशलाइज हो जाते हैं। Yes. तो स्टेम सेल इज द वन व्हिच कैन कीप डिवाइडिंग। अब हमारा टॉपिक है, दिस इज वी हैव रीच्ड नेक्स्ट टू meiosis। तो meiosis is a dash division R से। फिर stem cells में वो होती है, Reduction mitosis division. होती है, होता है. यस 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 बेटा, यस यस। अच्छा, meiosis का मुझे अपने R से। Reduction division. वेरी गुड, दिस इज रिडक्शन डिवीजन। अगेन दिस इज आल्सो न्यूक्लियर डिवीजन। Yes. दैट रिजल्ट्स, इट्स नॉट सेल डिवीजन, बट इसके बाद जो सेल डिवीजन होती है ना, उसकी बात हो रही है। जैसे आपको पता है बेटा, फर्टिलाइजेशन इज रिप्रोडक्शन, या फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन रिप्रोडक्शन? Fertilization results in reproduction. Results. Yeah, fertilization is not reproduction, but this is just a stage before that. So nuclear division that results in production of, जी सहर आप बताइए, जेनेटिकली डैश सेल्स।
different. Very good. I hope you all understand this. Yes, sir. Genetically different. Like, for example, making of sperms and eggs. Okay. So, अभी तक आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए, because now this is 17.1, 2, 3, 4. This is where we started, inheritance. So the next idea that we have to do in inheritance is basically, yeah, meiosis is used to make gametes. You know, it's very important. ये मैं extra Yes, sir. Yeah, used in sexual हम reproduction. सिलेबस बाय सिलेबस चाह रहे हैं ना, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बेटा, वो क्वेश्चन में आता है लेकिन सिलेबस में लिखा नहीं था इसलिए मैंने स्किप कर दिया. तो oops, asexually sexual, yes, you're right. Sir, yes. Well, अब हम Sir, देखेंगे ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है. इनहेरिटेंस का. नहीं बेटा, जी. ये तो 17.4 अभी स्टार्ट, मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस वी डिड. आप बात सुनो, आप सिलेबस, आप लोग सिलेबस को वैसे रिव्यू किया करें खुद से. मैं आपसे शेयर भी जी कर सर. दूँ, ठीक है, मैं उसमें आई सेंड. आप देख सकती हैं मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस. आप लोग सिलेबस देखें ना, तो जो हमने पढ़ा है कोई चीज़ अगर हॉन्ट करती है, रह गई है, तो बाय द वे वी कैन हैव अ डे फॉर डिस्कसिंग दिस सिलेबस थिंग्स. 15-20 नंबर का पेपर तो आते ही सिलेबस से. जी सर. तो बच्चों, मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है इनहेरिटेंस ऑफ एनीबॉडी. No idea, sir. वन A ट्रेड. single culture with वन ट्रेड. इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेड. one trade. जैसे हम कहते हैं ना, हाइट कैसे ट्रांसफर होती है बच्चों में, तो वी आर टॉकिंग अबाउट वन ट्रेड. तो इसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस. डन. जी सर. Yes, sir. और बच्चों, जो जीनोटाइप है ना, जीनोटाइप, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स. जीनोटाइप इज व्हाट? Combination of एक allele. छोटी डेफिनेशन भी है, जेनेटिक. Genetic allele. नहीं, एक छोटी डेफिनेशन भी है, जेनेटिक मेकअप. बट द गुड डेफिनेशन दैट आई लाइक इज कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स. मतलब देखो, अगर आप पास दो डोमिनेंट एलील है, हैव यू हर्ड ऑफ डोमिनेंट एलील? Yes, Yes. sir. The one Yes, which sir. shows itself. अगर बंदा हेटेरोजाइगस This हो is ना, always. दो डिफरेंट एलील हो, तो द वन दैट शोज इज गॉट डोमिनेंट, है ना. Yes. जी. तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स को जीनोटाइप कहते हैं. समझ आ रही है आप क्या हो? फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास दोनों डोमिनेंट एलील हैं, तो आप कह सकते हैं मैं होमोजाइगस डोमिनेंट हूँ, इस तरह, या मैं होमो रिसेसिव हूँ, या मैं हेटेरोजाइगस हूँ. तो ये सारा कुछ है ना, जी होमोजाइगस, सर. हेटेरोजाइगस, ठीक है ना, होमो रिसेसिव, दिस ऑल इज डैश. जीनोटाइप या फिनोटाइप? Genotype. Genotype. Yeah. वेरी गुड. जीनोटाइप मींस कॉम्बिनेशन ऑफ. Allele. सहर भाई, सहर बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ Alleles. एलील, या. अच्छा, नाउ फिनोटाइप. कुछ बच्चों के लिए ये रिकैप है ना. अच्छा, सहर हमारे साथ सिर्फ इस क्लास में आती है, इसलिए मैं आपको बार बार पूछता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल इकरा, रोशीन, बाकी सब लोग हम ही रहते हैं, दूसरी क्लास में भी इकट्ठे होते हैं, ठीक. सो द आइडिया इज फिनोटाइप. फिनोटाइप इज ऑब्जर्वेबल फीचर्स, राइट? Yes. Okay. But sometimes they're not observable, so I think its outcome of genotype is good definition. And I think this is less than a minute. It's finishing up. Can you join me again? Yes, sir. Sure. Yes, sir. Okay. Please join Love me us. because there's next class as well. जल्दी से join कर लीजिए. मैं पानी